چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، طلباء پر بنگلہ دیش میں مودی مخالف مظاہروں کے درمیان جو ہوا اس کی ویڈیو آئی ہے، جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ دکھوں گا۔ اور میانمار میں اس وقت ایک ہی دن میں 50 سے زائد پروٹیسٹرز کو، احتجاجیوں کو قتل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اتوار سے مہاراشٹرا میں کیا دفعہ 144 نافذ ہوگا؟ بنگال میں دوپہر 2 بجے تک اور آسام میں کتنی ووٹنگ ہوئی وہ بھی بتاؤں گا۔ اور غریب مزدور کے بیٹے اظہر الدین نے کس طرح سے کباڑ سے دی الیکٹرک کارٹ اور سائیکل بنائی وہ بھی بتاؤں گا۔ اور نہر سوئس میں پھنسے 2 ہیکل جہاز کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہیں پورے عالم کے لیے۔ مسجد میں بیٹی، مسجد کے مسحور کن ماحول کو دیکھا پھر مسلمان ہو گئی، برطانوی دوشیزہ کی وہ خبر سناؤں گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لے، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا سیدھی بات فاؤنڈیشن کا امدادی کام اس وقت جو ہے پہاڑی علاقوں میں جاری ہو چکا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ ہی کے تعاون سے ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ کوشش کریں کہ جو ہے غریب مزدور، بےکس اور یتیم اور ان لوگوں تک آپ کی جو ہے محنت کی کمائی اور جو صدقہ اور دیگر چیزیں ہیں ان تک پہنچانے میں ہماری ضرور مدد کریں۔ اور اس کے لیے نیچے یہاں پر تفصیل دی جا رہی ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، اس میں واٹس ایپ کریں، آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر ہے میانمار کی۔ ظلم و ستم کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس وقت میانمار میں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک جو ہے لگ بھگ 50 مظاہرین کو کل جو پروٹیسٹ ہوا ایک دن میں قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی قتل عام کا یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا۔ برمی فوجی پوری طرح سے اس وقت جو ہے ظالم ہو چکی ہے۔ یہاں نہتے لوگوں کو جو ہے پوری طرح سے جو مظاہرے کر رہے ہیں ان پر گولیوں کی بوچھار کر رہی ہے۔ یہ کل کی تازہ خبر ہے، جو ہلاکتوں کی تازہ خبر آئی آج، اور جو ہے اس طرح مظاہرین پر لگاتار فوج ظلم کرتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش لے چلوں اور یہ دیکھیے طلباء کی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو خبر دکھایا تھا، تفصیلات سنایا تھا، لیکن ویڈیوز نہیں بتائی تھی۔ 4 افراد کے ہلاکت کی خبریں آئیں، لیکن آج خبر آ رہی ہے کہ 7 طلباء جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ سینکڑوں طلباء اس وقت زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ سب کے سب مودی پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مظاہرے کر رہے تھے۔ ڈھاکہ کے علاوہ بڑے بڑے یونیورسٹیز کے طلباء نے جو ہے یہاں پر جو ہے کل بنگلہ دیش میں مودی کی آمد کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی، پتھراؤ ہوا، اور اس کے بعد یہاں کی فوج نے پوری طرح سے جو ہے طلباء کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اور یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ ظلم و ستم کی کہانی کے بارے میں اور داستان کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں طلباء کے ساتھ وہاں کی فوج نے کیا کیا ہے جو مودی کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین گرامی، مبارکبادی پیش کریں ہم ایک طالبہ کے سامنے، افرا خان، جو ناگپور مہاراشٹرا سے تعلق ہے۔ اس نے JEE ایگزامینیشنز میں پورے بھارت میں لڑکیوں میں 99.99 پوائنٹ حاصل کر کے، کامیابی حاصل کر کے اس وقت ملک کا بھی، اپنے گاؤں کا بھی اور اپنے جو ہے برادری کا اور سماج کا نام روشن کیا ہے۔ ہم اس موقع پر افرا خان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ JEE مینس ایگزامینیشن میں انہوں نے بہترین انداز میں پوری خواتین میں، پوری طالبات میں پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کر کے ملک کا بھی نام روشن کیا اور اپنے سماج اور اپنے مذہب کا بھی نام روشن کیا۔
आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूं महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग के बाद कहा है कि इतवार से महाराष्ट्र में दफ़ा 144 नाफिज होने का इम्कान है, इसलिए कि क़वानीन को सख्ती से नाफिज करने के लिए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हिदायत जारी की है। कोविड-19 के मरीज़ों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में रियासत में कोरोना मरीज़ों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र भीड़ भाड़ से बचने के लिए इतवार 28 मार्च 2021 की रात से पूरी रियासत में कर्फ्यू नाफिज करने, बढ़ती हुई तादाद की रोकथाम के लिए कुछ सख्त इक़दाम नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इन्फेक्शन और मौसर तरीके से इस पर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में अलहदा अहकामात आज महकम इमदाद और बहाली के ज़रिए किए जाएंगे। ये खबर उन्होंने पेश की और मीटिंग के बाद फैसला है, लिहाजा महाराष्ट्र में रहने वाले लोग इस बात को वाज़ेह तौर पर जान लें कि वहाँ पर जो है इस वक्त 144 कल से नाफिज होने के इम्कानात हैं। नाज़रीन गिरामी, आज दो इलाक़ों में, आसाम और बंगाल में, दो रियासतों में वोटिंग हो रही है, आप जानते हैं, और मुख्तलिफ़ फेसेस में यहाँ पे वोटिंग होगी। आज पहला दिन है, पहले मरहले की वोटिंग है। इसमें दोपहर 2 बजे तक जो फ़ीसदी बताई गई है वो 45.24% आसाम में और बंगाल में 54.90% वोट पड़े हैं। ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह 1 बजे तक सुबह के 1 बजे तक ये वोटिंग हुई थी और इसमें लगातार जो है इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक हम जो है इस न्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त तक जो फ़ीसदी आई है वो हमने आप लोगों के सामने रखा है। शाम में मज़ीद इस सिलसिले में जो तफसीलात आएंगी वो फराहम करने की कोशिश होगी। नाज़रीन गिरामी, वालिद ने ज़िंदगी भर मजदूरी की, माँ कभी स्कूल नहीं गई, बेटा जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल में पढ़ा और मैकेनिकल इंजीनियर बनकर इस वक्त धमाल कर रहा है। इस कहानी में गाँव है, गरीबी है, सलाहियत है, मेहनत है और फिर अज़हरुद्दीन है। आलम यह है कि मेरठ के पास मुरादनगर के रहने वाले बीटेक के दूसरे साल के तालिब इल्म के खोजी दिमाग को देखते हुए अब इसे कॉलेज फ़ीस लेता ही नहीं है, बल्कि उसके बरक्स उसे मैनेजमेंट सभी सहूलियात दस्तयाब कराता है। ये कहानी मिसाल है कि अगर काबिलियत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर रास्ता खुल जाता है। फ़ोटो में देख रहे इस तालिब इल्म का नाम है अज़हरुद्दीन, जो कबाड़ को जमा किए सामान से इलेक्ट्रिक कार्ड बनाकर सभी को हैरान कर दिया है। अब उसे ऑनलाइन बैरून ममालिक से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्ड के अलावा 21 साल अज़हरुद्दीन ने एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल भी बनाई है। इतना ही नहीं, एक सोलर कार्ड भी अज़हरुद्दीन की इजादात में शामिल है जिसे चार्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। एक और ख़ास बात यह है कि ये कमाल अज़हरुद्दीन ने तनहा किया है, जबकि मुख्तलिफ़ कंपनियों में इसी काम पर रिसर्च करने के लिए इंजीनियरिंग की पूरी टीम लग जाती है, लेकिन अज़हरुद्दीन अकेला इस तरह खोज निकाला कि जो है साइकिल भी बनाई और कार्ड भी बनाया और इस वक्त उसको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि अज़हरुद्दीन के वालिद अमीरुद्दीन एक मज़दूर हैं और पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करते रहे। बेटे की इस कामयाबी पर कहते हैं बहुत अच्छा है, अब गाँव में लोग मुझे मेरे बेटे की वजह से जानते हैं, अब ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है। अज़हरुद्दीन मेरठ के भारती यूनिवर्सिटी बीटेक मैकेनिकल में दूसरे साल के तालिब इल्म हैं और उनके इस कामयाबी पर, उनके इस इजादात पर इस वक्त जो है पूरी तरह से उनको ये सराहना हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी जानिब बढ़ती जा रही हैं। एक मुसलमान होने की वजह से अज़हरुद्दीन की इस खबर को नेशनल मीडिया न पेश कर रहा है, न उसकी कामयाबियों को सराहने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो है उन्हें उनकी कोशिश की काफ़ी तारीफ़ भी हो और उनको जो है आलमी सतह पर पहचान भी दिलाई जाए। हैदराबाद की एक सोसाइटी से 6 सोलर कार्ड का ऑर्डर उनको इस वक्त मिल चुका है। अज़हर ने पहली ई कार्ड सिर्फ 1.5 लाख रुपए में तैयार कर दी थी। ख़ास बात यह कि इसमें कबाड़ का इस्तेमाल हुआ था। अज़हरुद्दीन ने उसे मज़ीद बेहतर किया है, जिसमें ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह है। उनकी बनाई हुई ई कार्ड दुबई में भेजी जा चुकी है। अज़हर बताते हैं कि हुकूमत ताउन करते हैं तो बहुत बड़ा कुछ कर देंगे और मुल्क में आलूदगी कम करने, माहौलियात को बेहतर बनाने में ताउन पेश करेंगे। इस तरह उनकी जो है इस वक्त मंशा है, उनका इरादा है कि अगर बड़े पैमाने पर उनका ताउन पेश किया जाए और सरकारी सतह पर अगर वो ताउन हो तो जो है उनके लिए बेहतरी होगी और आगे बढ़ने में उनके लिए ताउन होगा। ये कहते हुए अज़हरुद्दीन मुख्तलिफ जो है नामानिगारों को और मीडिया ज़राए को बयान दे रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, नहर स्विस में फंसे हुए एक देवहैकल बहरी जहाज़ इस वक्त पूरे आलम के लिए दर्द सर बन गया है। अब तक वो निकाला नहीं जा सका है, जिससे यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का
बहरी रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है और अगर इसी तरह कई महीने कई दिन जारी रहा तो महंगाई में इजाफा हो सकता है, इसलिए कि ये जिस नहर में फंसा हुआ है वो सारे आलम को जोड़ता है। कई बहरी जहाज़ रास्ते में रुक गए हैं जबकि ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स दुगने हो गए हैं। दुनिया भर में तेल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। हुकाम के मुताबिक जहाज़ का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि ये बंदिश चंद दिनों या हफ्तों तक भी जारी रह सकती है, जिससे मुमकिन तौर पर आलमी सतह पर सप्लाई नेटवर्क को धचका लगेगा और कारोबारियों को अफ्रीका के जुनूबी सिरे के आसपास कार्गो जहाज़ों को भेजना पड़ेगा। एक बड़े ऑपरेटर हिपिंग लाइट ने बताया कि इसके 5 जहाज़ों को रोका गया है और वो अब मुमकिन तौर पर दूसरा मकाम ढूंढ रहे हैं। मिस्र की नहर स्विस अथॉरिटी SCA ने कहा कि वो MV एवरगेवन जो 400 मीटर यानी 1300 फीट लंबा जहाज़ है जो मंगल के रोज़ रेत के तूफानों में फंस गया था, को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए टैग बोट्स, ड्रेजर्स और भारी मशीनरीज तैनात कर दी गई हैं। ताहम अब तक जहाज़ अपने मकाम से टला हिला तक नहीं है। तो ऐसे हालात में महसूस किया जा सकता है कि इतने बड़े जहाज़ को जहां फंस गया वहां से हटाने में और भी कई दिन लग सकते हैं। बहके फ़िलहाल ये जहाज़ इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है एक तूफ़ान में फंसने के बाद। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूं और एक ऐसी खातून से मिलाऊं जो खातून ब्लू मस्जिद के मशहूर कुन माहौल से मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल कर लिया। जी हाँ, तुर्की के सकाफ़ती और कारोबारी मरकज़ इस्तांबुल के मशहूर मारूफ ब्लू मस्जिद के मशहूर कुन माहौल से मुतासिर होकर एक बरतानवी दोशीज़ा के इस्लाम कबूल करने की खबरें आ रही हैं। इस्तांबुल की सुल्तान मोहम्मद मस्जिद नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है। 2 साल पहले यहाँ बरतानिया की 24 साला दोशीज़ा सैर करने आई, लेकिन इस दौरे ने उसकी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद बरतानवी दोशीज़ा ने अपना नाम आयशा रोज़ेली रख लिया है। बरतानिया की 24 साला आयशा 2 साल कबल तुर्की आई थी। इस्तांबुल की सुल्तान मोहम्मद मस्जिद के दौरे वो इस मस्जिद के हुस्न, दिलकशी और उसकी रूहानी और मशहूर कुन माहौल से इस कदर मुतासिर हुई कि वापसी पर आयशा ने इस्लाम के मुतालिक रिसर्च शुरू कर दी और बिलाखिर उसका दिल इस्लाम की तरफ ऐसा माइल हुआ कि उसने तुर्की में ही इस्लाम कबूल कर लिया। आयशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तुर्की के दौरे के दौरान वो अपने आंखों में एक अदाकारा बनने का ख्वाब सजाए बैठी थी, लेकिन इस्तांबुल की सुल्तान मोहम्मद मस्जिद के हुस्न ने उसे ऐसा मुतासिर किया कि वो इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने से पहले वो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी। उनका मानना था कि बचपन में वो खुदा को मानती थी और अक्सर खुदा से बातें भी किया करती थी। तुर्की के दौरे में उनका किसी मज़हब या इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस्तांबुल आने से पहले गूगल पर मैंने नीली मस्जिद देखी और फिर तुर्की में इस मस्जिद की सैर करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि तुर्की आने से पहले वो बहुत खौफज़दा थी क्योंकि मगरबी मीडिया में उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने को मिली थी। आयशा ने बताया कि नीली मस्जिद की सैर से पहले वो करीबी दुकान में गई और वहाँ से हिजाब ख़रीदा ताकि वो मस्जिद में बाइज़्ज़त तरीके से दाखिल हों। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे बालों से वेस्टर्न स्टाइल से नाराज़ होकर मुझे मस्जिद में दाखिल होने से मना ना कर दे। उन्होंने कहा कि मैं एक तस्बीह भी ख़रीदी और मस्जिद के एक कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ती रही। ये घंटे बाद जब मैंने मस्जिद को गौर से देखा तो मैं उसकी खूबसूरती और उसके पुरसुकून माहौल से मुतासिर हुई। मैंने वहाँ देखा कि लोगों को जो इंतहाई पुरसुकून तरीके से नमाज अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्तांबुल की नीली मस्जिद ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस्लाम की तरफ माइल हुई और इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया और बिलाखिर मैंने इस्लाम कबूल करने का तहैया कर लिया। ये कहानी है आयशा की, जो तुर्की के सुल्तान मोहम्मद मस्जिद जो नीली मस्जिद मशहूर है उसके मशहूर कुन माहौल को देख कर के इस्लाम कबूल किया और इस वक्त ये तुर्की के बहुत सारे अखबारात में सुर्खी लेकर की ज़ीनत बनी हुई है। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रखती गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है
عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی